اور بہت آنیسٹلی شاید جو پرائیویٹ جو ہزاروں میں فیس لیتے ہیں وہاں بھی اتنی شاندار فیسلٹیز نہیں ہوتی, اتنا نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ نہیں ہوتا جتنا ہم نے اس جم میں دیکھا. اور ایک اور چیز جو ہم نے نوٹ کی کہ زیادہ جو یہاں قیدی تھے وہ 9C یعنی منشیات کے حوالے سے تھے. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام لوگ فٹنس پر آ جائے, فزیکل ایکٹیویٹیز پر آ جائے, تو یہ جان چھوٹ سکتی ہے ان کی منشیات کے استعمال سے بھی, اور منشیات کی جو دنیا ہے یہ اس سے بھی باہر جا سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہوگا منشیات کے خاتمے کی جانب اس طرح کے سینٹرز کے توسط سے انشاءاللہ. لیں جناب, انٹرنیٹ کمپیوٹر لیب اینڈ ٹریننگ سینٹر, یہ ہم آگے ہیں جی. اور کیا بات ہے, زندہ آباد, ماشاءاللہ. السلام علیکم, کیا کہنے ہیں جناب, واہ واہ واہ, کیا کہنے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ انچارج ہیں سر یہاں پہ؟ جی. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, خیریت سے؟ جی خیریت سے. تو آپ کا تعلق کمپیوٹر سے جیل میں آنے سے پہلے بھی تھا؟ پہلے بھی تھا. اچھا, کیا کام کرتے تھے آپ؟ میں نے اس میں اسپیشلائزیشن کیا ہارڈ ویئر میں. ہارڈ ویئر میں؟ جی. اچھا, تو اب آپ بطور انچارج یہاں پہ کیا کیا چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں جو؟ سر یہ ای لیب ہے, اس سے پہلے یہ کمپیوٹر لیب تھی, تب سکھاتے تھے. اوکے, تب آفس تھا, ورڈ تھا. انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہے؟ جی موجود ہے. اچھا, بہت شاندار بات ہے. جی, اور ای لیب میں یہ آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, بکس, مختلف بکس, وہ مذہبی ہو گئیں, وہ فکشن ہو گئے, ناول ہو گئے, اسلامک ناول ہو گئے, یا ان کا جو چیز یہ ریسٹرکٹیڈ ہے. صحیح, اس میں آپ ہر چیز اوپن نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جو جتنے بھی بورڈ ہیں, یونیورسٹیز ہیں نا, ان کے سلیبس اس پہ ایکسیس ہے. اچھا, یہاں کیا لوگ آپ آن لائن ان کو ایکسیس کر کے جی پڑھ جی سکتے ہیں؟ وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کی بکس بھی ہیں, ان کے سارے ہر سلیبس ہر جی. چیز میں دیکھ رہا ہوں اخبارات کھلے ہوئے کچھ لوگوں نے, ہاں جی, کچھ نے جو ہے وہ جناب یہاں پہ کچھ پوئٹک, اور ایک تو بہت ہی شاندار جو اسلامی کوئی پیجز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ایک طرف قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں, یہ تو بڑی شاندار بات ہے. تو یعنی اس طرح کی چیزیں, جو وہ چیزیں جو نیگیٹیولی استعمال ہو سکتی ہیں وہ بند ہیں, وہ ان وہ پہ بند ریسٹرکشن ہے, ویڈیوز ہیں وہ نہیں دیکھیں. نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر اس کی فی الحال یہاں ضرورت فی الحال نہیں ہے. ضرورت تو آپ نہیں کے ہے. سب سے اچھے اسٹوڈنٹ کون سے ہیں؟ یہ بھائی. اچھا, یہ والے بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا جی؟ ٹھیک ہے. آپ کو انہوں نے اپنا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ کہا ہے, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, شکر. اچھا, تو ابھی آپ ہندی نہیں, اچھا ہندی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ میتھمیٹکس سے میتھ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا, یہ تو بڑی مشکل سی چیز کچھ لگ رہی ہاں ہے. جی. میتھ ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا. جی, تو آپ کو آسان لگتا ہے؟ ہاں جی, فیسلٹی بہت زیادہ ہیں. ایجوکیشن کے لحاظ سے جو بندہ اپنے آپ کو سیکھنا چاہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے, اس کے لیے بہت بڑی تو اپرچونٹی آپ ہے یہ. دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ ایز اے پرسن آپ یہاں سے ایک اچھا اور مزید بہتر انسان بن کے باہر جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جیل کا ماحول جس طرح ہم باہر کے لوگ سوچتے ہیں کہ یار وہاں تو اور زیادہ کرمنلز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا مزید پتہ نہیں ذہن جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے, تو یا خرابی پیدا ہوگی آپ کے خیال میں آپ کی شخصیت میں؟ بالکل دیانتدارانہ جواب دیجیے گا. بالکل ڈیڈ آنیسٹلی یہ بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا یہاں پہ. بہت ساری ہمیں ایسی باتیں تھیں جو ہم بعد ہمیں اس پہ نہیں نظر آ رہا تھا, لیکن یہاں پہ آ کے ہم اس نے سیکھا ہے, اور بہت کچھ ایسے اپنے اندر چیزیں دیکھی ہیں جو ہمیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو ایک بہتر انسان بننے کے لیے, ایک بہتر مہذب شہری بننے کے لیے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جو پہلے خامیاں تھیں ان کو دور کریں, اور انشاءاللہ ان میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. زندہ باد. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, کیسے مزاج ہے قبلہ, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, مزاج اچھے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. آپ تو مجھے لگ رہا ہے کچھ دینی مواد دیکھ رہے ہیں. جی سر. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ جہانگیر نذیر. جہانگیر. جہانگیر میں کہاں سے تعلق آپ کا؟ منڈی بہاؤدین. منڈی بہاؤدین سے. اور کس سلسلے میں یہاں؟ 302 میں. اللہ رحم کا معاملہ فرمایا آپ سے. تو ابھی کتنا وقت ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ 7واں سال ہے. 7 سال ہو گئے. اچھا, آپ تو ویسے بھی بڑے ینگ لگتے ہیں. اس وقت کیا ایج ہے آپ کی؟ ہوگی 32. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 25 سال کی عمر میں جو ہے جی سر یہاں آ گئے تھے. اچھا, تو پھر کیا مصروفیت کیا ہوتی ہے آپ کی صبح سے لے کے شام تک, رات تک؟ صبح فیکٹری آتے ہیں پہلی شفٹ. اچھا ٹھیک ہے, 11 بجے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, جا کے نماز پڑھیں, کھانا کھائیں گے, والی بال کھیلیں گے, پھر شام کو سو جائیں گے نماز پڑھ کے. اور یہ کمپیوٹر کا تو یہ اچھا ایڈیشن ہوگا آپ کی جی, بہترین پیپر کی تیاری کر رہا ہوں. اور کیا پیپر دے رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ ادھر سے نظامی کر رہا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, اسلامی لٹریچر نکال کے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ادھر سے نظامی کی تیاری کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. زندہ باد, کیا کہہ رہے ہیں. چلے اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. تو کبھی کبھی کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوتی, ڈپریشن کا کوئی ایک موڈ کہ کہاں پھنس گئے, اور کچھ اس طرح کے فیزز بھی آتے ہیں؟ ٹینشن تو ہوتی ہے, لیکن اللہ خیر کرے. اور پھر کیا چیز ہے جو ٹینشن سے نکالتی ہے آپ کو؟
जब घर वालों से बात होती है थोड़ी सी उम्मीद दिलाते हैं अच्छा चलिए और फ्रेश महसूस चलिए करते आई हैं। होप कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे आमीन, इंशाल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू माशाल्लाह जी। ये बड़ी क्या बात है, दरस निज़ामी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, आप देखिए इंटरनेट से, क्या कहने, जिंदाबाद माशाल्लाह। अच्छा हम देखते जाते हैं ज़रा क्या क्या पढ़ा जा रहा है, छापा मारते हैं हम माशाल्लाह। ये जी कुछ कुरानी आयात हैं और ये भी बड़ा कोई खूबसूरत आर्टिकल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? क्या इसमें गिरामी? अली एजाज सर। अली, क्या खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। और कब से हैं आप यहाँ पे सेंट्रल जेल में? सर मुझे इधर 2 साल हो गए हैं। 2 साल आपको? जी। तो इससे पहले कहीं थे या बस आए ही सेंट्रल जेल में आप? नहीं, मैं गुजरात जेल में था। आप गुजरात जेल में थे और जी। किस जुर्म में? सर 302 में। 302 में, अल्लाह अकबर। अच्छा तो अभी ये क्या पढ़ रहे हैं आप इस वक्त? सर ये मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ रहा था। सही। तो जब आप से जुर्म सरजद हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक पर्सनल अदालत मैटर का है। मामला है। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि जेल में आने से पहले आपका रुझान था इस तरह की तहरीरों की तरफ या मज़हब की तरफ, या यहाँ आके ज़रा ज़्यादा इधर आके इस जेल में हुआ है सर। अच्छा उधर पहले सहूलियत नहीं थी इतनी, सही, और जब किताबें जो मांगते थे वो लाइब्रेरी में होती नहीं होती नहीं थी। थी। लेकिन ये अल्लाह का बड़ा करम और फजल है कि इसमें हम एक ऑनलाइन घंटा कोई मिल भी जाता है कि हाँ, एटलीस्ट आप, और किताबें भी दस्तयाब हो जाती हैं यहाँ होती पे। हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं होती, जो हमें लिख के मंगवानी पड़ती हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ से हम ऑनलाइन कोई भी किताब निकाल के पढ़ सकते हैं क्या आसानी बात से। है। चले ये एक हाँ। कम से कम अच्छा वक्त अच्छा, गुजरता हाँ, रहेगा अल्लाह का इससे। बड़ा करम और है। यकीनन इससे इस्लाह भी हो रही होती है और सीखने को भी मिल रहा जी, होता जी, है। सर। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे अब बहुत शानदार चीज़ लगती है ना, क्योंकि मैंने कुछ विजुअल्स देखे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो ये थे कि एक शॉप बना दी गई है जहाँ पे अभी सारा कुछ डिस्प्ले होता है, और वहाँ इतनी शानदार किस्म की हमने कालीन और मुख्तलिफ चीज़ें देखी कि मेरा बड़ा दिल था कि मैं वो जगह जाके देखूँ जहाँ ये बन रहे हैं। तो ये है जी कारपेट शेड, लाहौर की सेंट्रल जेल का, और क्या बात है, अच्छा वाह वाह वाह, ये तो एक बड़ी फैक्ट्री की शक्ल है जनाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जनाब? आप क्यों इस तरह से बैठे हुए हैं? शक्ल खत्म हो गई ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप खैरियत से? जी, ये शुक्र। क्या चीज़ है? ये नक्शा है जी। अच्छा, तो ये इसके मुताबिक फिर जो है चीज़ें, जी, जितने नोट्स इस पे हैं ना, इसी तरह ये क्लीन के ऊपर भी नोट्स हैं, तारे बनी होती हैं। ओके। यहाँ से नोट्स गिन गिन के फिर वहाँ पे फंदे लगते हैं, उससे अच्छा, फिर अच्छा, क्लीन अच्छा, बनता तो इसके मुताबिक फिर चीज़ें है। जी, आगे इसके बढ़ती हैं। मतलब यही जो सेम डिज़ाइन है यही वहाँ बनेगा। ठीक ठीक ठीक, चलें जी, देखते हैं कैसे बनते हैं, क्या बात है। पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा एक बार दिखाइए कि आप ये बाकायदा एक ह्यूज फैक्ट्री है जो जहाँ पे ये कालीन बनाए जा रहे हैं, और ये बरस बरस से यहाँ पे काम हो रहा है और बड़ी शानदार। तो सर ये जो लोग हैं इनको यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेंड लोग हैं जो आके काम करते हैं? मतलब ये एक सिलसिला चल रहा है ना जी, जो पुराने लोग हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं, राइट, ठीक है जी, और फिर वो नए लोगों को ट्रेंड करते हैं, जो ओके, जिनकी यहाँ सही। पे मुशक्कत डाली जाती है। तो वह जो ट्रेंड लोग हैं वो फिर कैटेगरीज हो जाती जी होंगी। जी, बिल्कुल ऐसे। तो इनमें से सबसे अच्छा हाथ किसका है कालीन बनाने में? हाँ जी, कोई अगर ये- यहाँ इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम, आप देखते हैं इसको जी? जी, मैं ठीक है, आप डिज़ाइन खैरियत मैं से? डिज़ाइन जी अच्छा, आप डिज़ाइन भी जी, आता है? मैं डिज़ाइन ओके, जी, जी, माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह। तो आप आउटसोर्स किया हुआ है आपको इन्होंने? जी, राइट, ठीक है। तो ज़रा मिलवाएं ना हमें अपने दोस्तों से, आप प्लीज़ आइए। ये है हमारे साथ सीनियर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? क्या नाम है सर आपका? लियाकत। लियाकत साहब, कब से कर रहे हैं कालीन बाफी का काम आप? मैं सर बाहर भी करता था, फिर बाहर भी यही काम करते थे? जी, तो सर। कितना अरसा वहाँ काम नहीं मैंने कुछ 7 साल से करता रहा हूँ, 20-25 साल किया काम। तो कुल मिला के 25 साल से आप कालीन बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, जिंदाबाद, क्या बात है। तो ये दिखने में तो बड़ा मुश्किल काम लगता है, तो वाकई मुश्किल है या अब आपके लिए आसान हो मुश्किल तो गया सारा ये? होता है, लेकिन जब सीखा जाता है फिर मुश्किल नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, तो ये अब आपको ये प्रिंट्स इस तरह से मिल जाते हैं और इसके मुताबिक फिर ये हाँ बनता जी, चला बिल्कुल जाता ये प्रिंट होता है। है। जिंदाबाद। और अगर कोई खास फरमाइश होगी जी, मुझे इस तरह का कालीन बनाना है या मुझे ये फोटो बनानी है कालीन के ऊपर, हाँ तो बन जाएगी सर वो भी। अच्छा, ये भी आसानी हो जाएगा, क्या बात है। जिंदाबाद, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। अच्छा, तो ये कुल कितने लोग हैं सर जो इस वक्त काम कर रहे हैं? इस वक्त हमारी एक शिफ्ट में तकरीबन 370 बंदा है इसमें। अच्छा, और ये शिफ्ट चेंज होती रहती जी है? जी, यानी इसका मतलब है कि तकरीबन 2 शिफ्ट होती हैं? दो शिफ्ट होती हैं। तकरीबन आप भी कह लीजिए कि 600-700 लोग यहाँ ये पे काम कालीन करते बना रहे हैं। होते जी, हैं। जी। तो क्या प्रोडक्शन कितनी है, एक महीने में या एक हफ्ते में या एक दिन में? ये हम इनको डेली की बेस के ऊपर इनको वर्क देते हैं, ये अपना काम ख़त्म करते हैं एक शिफ्ट के ऊपर और ये चले जाते हैं। ठीक फिर है। दूसरी शिफ्ट आ जाती है, वो उसके ऊपर काम करती है, तो हमारे यहाँ से 300-400 स्क्वायर फुट जो है ना वो उतरता है महीने में। अच्छा, और फिर ज़ाहिर है ये सेल होता है, और सेल होने के ये बाद हमारा डिस्प्ले सेंटर है, जी, ये वो- हम वहाँ पे भेज देते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जो
पब्लिक है वो आके वहाँ से चूज़ करके लेके क्या जाती बात है। है, क्या। और उसकी आमदन में से इनके लिए क्या होता है? इनके लिए तो जो सेंटिम है वो तो हमारे डिप्टी ये ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे। ये इनके लिए हाँ। जो इंसेंटिव है ना जी, यहाँ पे इनको कैद में जो है वो रिमिशन हम उसको कहते हैं, अच्छा। कैद में कमी। सही। जी। एक तो एक इनको मसरूफियत मिल जाती जी, है मसरूफियत कि जरा मिल जहन लगा रहता है क्रिएटिव जी। काम की तरफ, और जी। दूसरा ये कि वो उस तरह से कैद में इंसेंटिव कमी। भी कि आपकी कैद में भी उस तरह से कमी होती रहती जी। है, और वो फंड ज़ाहिर है फिर इन्हीं की फलाह बहबूद के लिए जी। इस्तेमाल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आइए। अच्छा, ये तो बहुत ही माशाल्लाह बड़ा ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? पहले भी कालीन बनाते थे आप या यहाँ आके सीखा आपने? ये यहाँ ही सीखा। यहाँ सीखा? कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? 3 साल है। 3 साल। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अब ये बताएं कि आपको जो ये जो प्रिंट मिला हुआ है, हाँ जी, तो इसके बिल्कुल ऐन मुताबिक बनाना हाँ, होता है? बिल्कुल अच्छा, सेम। मुझे तो ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं। नहीं ये सेम है, ये नक्शा है, हाँ जी। ये वाला। अच्छा। ये इस टाइम पे इसका जवाब इधर है, ये सफ़ेद बंद हुए अच्छा। है, ये फूल बंद हुआ है, ये मैं ही बनाता हूँ इधर। ओके। मुझे 9 साल हो गया इस बनाते हुए। अच्छा। ये मैंने जेल से ही सीखा है और सही। इधर ही कर रहा हूँ। और अब तो आपका हाथ साफ हो गया होगा। हाँ जी। जिंदाबाद। तो जब एक कंप्लीट हो जाता है कारपेट, जी जी, तो कैसा लगता है फिर उसको देख के कि यार ये चीज़ मैंने बनाई है? ज़ाहिर बात है, खुशी तो होती है। अच्छा लगता है कि यार इसकी ना 3.5 फुट ये इसकी चौड़ाई है। अच्छा। और 10 फुट ये लंबा बनेगा। सही। यहाँ ये 5 फुट है, ये यहाँ पे हाफ होगा, ओके। और ये कार राहदारी के लिए अब तो आपका समझे कि बिल्कुल हाथ सीधा हो गया हाँ इसके ऊपर। बिल्कुल। 9 साल हो गए हैं, 9 साल एक तो अरसा इससे होता है। पहले क्या काम करते थे आप? बार मारा ना कारोबार था, बोतल नहीं, देसी बोतलें होती हाँ जी, हाँ जी। उसका। अच्छा, उसका काम करते हाँ जी। थे। तो अभी जब ये चले, ये तो अच्छी बात है कि आपको एक मसरूफियत मिल गई है। कितना कितना टाइम गुजारते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हमारे ना 4 घंटे 4 घंटे। तो ये 4 घंटे तो आपको फिक्र नहीं होती होगी, जरा काम में गुजर हाँ, जाते वो होंगे। उसके अलावा बाकी तो फिर बाहर जब जाते होंगे तो क्या क्या सोचते हैं? जाके यही सोचते हैं कि कब अल्लाह ताला की ज़ात हमें यहाँ से माफ़ी देगी, और जाके फिर अपने बीवी बच्चों में, अपने बाल, अपने फैमिली कारोबार में। मिलने के लिए आते हैं फैमिली के लोग? हाँ, सारे? वो आते हैं मुलाकात। कोई कम तो नहीं हुआ हर साल के साथ साथ ऐसा ऐसा मुलाकातें कम हो गई? नहीं, कम तो हो जाती हैं, इतना अरसा हो गया, पीछे भी कख नहीं रह गया। हाँ, सही। और जो जुर्म क्या था आप? 302 था। हाँ जी। चले, अल्लाह ताला आपके घर वालों पे भी तो रहमत आपसे भी नाज़िल करे। हमारी नहीं, ये इंशाल्लाह हम जरूर जी, इंशाल्लाह और जोर रिक्वेस्ट है, जो आवाज़ हम पहुंचा और सकें काजी जरूर। फाइजा साहब से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सुने तो केस सही है ज़ेर रखिए, इस्तेमाल है, वो सुनाए जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए, मेहरबानी जी, आमीन। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये ज़ाहिर है इस तरह की शिकायतें, इसमें ज़ाहिर है जेल इंतज़ामिया के तो कोई इख्तियार नहीं है। जी जी। लेकिन लोग आपसे तवक्को तो करते होंगे कि जी कम से कम सुना तो जाए जी, मामला, और इस तरह की शिकायत करते हैं तो फिर क्या, किस तरह तसल्ली कैसे देते हैं आप उनको? इसमें फिर हम इनका ना जी वो रिक्वेस्ट दोबारा भेज देते हैं अच्छा। जल्द समाअत के लिए ना, सही। इनकी एप्लीकेशन फिर हम भिजवा देते हैं। अच्छा, वैसे ये ज़रा इंसानी रवैयों पे भी अगर बात हो जाए कि जिस तरह ये 1 साल होता है तो ज़ाहिर है शुरू में फैमिलियाँ बहुत आती हैं, खाने भी आते होंगे घरों से, जी, फिर जी। 2 साल गुजरते हैं, फिर 3 साल गुजरते हैं, वक्त गुजरता चला जाता है, तो जो फैमिलीज़ के रवैये होते हैं वो उनमें कुछ तब्दीली नोट जी करते हैं जी आप? जी, बिल्कुल आती है तब्दीली। कि किस तरह का फ़र्क होता है उनमें? ये बिल्कुल ही नेचुरल सी एक बात है। फिर जैसे जैसे वो वक्त इनका ज़्यादा होता जाता है अंदर, तो पीछे इनके जो फैमिलीज़ हैं वो फिर उनके मसाइल का शिकार हो जाती हैं। कोई अर्निंग हैंड लोग होते हैं फाइनेंशियली भी जी उनके बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते जी, होंगे। फिर अर्निंग हैंड अगर कोई हो अंदर आ जाए तो फिर पीछे फैमिली का बुरा हाल हो जाता है। फिर उनके लिए फिर उसको सस्टेन करना, उन ये मैं मुलाकातों के इसलिए लेवल माफ़ी को। चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ आपसे कि ये भी ज़रा अंदाज़ा हो कि लोग जुर्म करने से पहले सोचें भी। जी जी अब देखिए, इस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे कख नहीं रहा, जी जी, ऐसे ही। और जब इन्होंने किया होगा तब इन्होंने बड़ा जनाब कि मैं तो मुझसे बड़ा बदमाश और गुंडा कोई जी, नहीं है। तो जी, ये भी अल्लाह करे शायद कोई एक आदमी जुर्म करने से रुक जाए अगर हमारी जी, ऐसे आप ये बात सुनते ऐसे हो, ऐसे तो वो पूरे का पूरा खानदान तबाह होता है। ज़ाहिर है बिल्कुल एक ऐसे। आदमी जी, जेल जी, में पूरा नहीं आता। खानदान यहाँ आप तबाह भले होता उसको जन्नत बना के देते, जी जी लेकिन फैमिली का तो जी, फैमिली तबाह हो जाती है, इसमें फैमिली का कोई पूरा शक नहीं। निज़ाम जब वो जी, ऐसे ही। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कौन से लोग होते हैं, किस तबके के या किस सज़ा के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान? सजाए मौत के जी। सजाए मौत वाले। जी, जी, लेकिन सजाए। उनको तो एक अपनी फेट का अंदाज़ा हो गया होता है कि वो सब हमारा जी जी, वो कुछ नहीं हो ज़्यादा सकता। डिप्रेशन में वो होते हैं। डिप्रेशन में रहते हैं, तो जी, फिर ऐसे उनके ही। लिए कुछ खास करते हैं? उनके लिए जो है वो फिर जो गवर्नमेंट की हैं SOPs या जो हमें रूल्स रेगुलेशन परमिट करते हैं, उसके अंदर फिर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनको अब PCO करवाया जाता है फैमिली से। अभी PCO को हमने अपग्रेड कर दिया है, उसको वीडियो कॉल पे ले आए हैं हम। अच्छा, तो उससे उनका डिप्रेशन या उनकी जो थोड़ा है सा उसमें मीटिंग का आती जो है। है वो उसमें अच्छा, वीडियो कॉल्स होती हैं? जी, ये बड़ी वीडियो शानदार कॉल बात जी, है। वीडियो कॉल पे लें। उससे है कि जी राइट। TV लग गए हैं जी, केबल्स लग गई हैं, उसमें उनका वक्त गुजर जाता है, ज़रा दिन उनका डाइवर्ट हो जाता है। तो अंडर द रूल्स जो फिर हम जितना कर मैक्सिमम सकते फैसिलिटेट जी कर सकते हैं उनको ज़रूर करते हैं जी। एंड अगेन वो लोग ज़रा ज़्यादा रिलीजियस और मज़हब की जी तरफ जी, भी हमारे पास रुझान साइकोलॉजिस्ट भी हैं फिर। अच्छा। हाँ, उनको जो है वो उनकी काउंसलिंग करवाने के लिए
وہ سائیکالوجسٹ لیکن ہیں. بہرحال یہ اس لیے ہم بات کر رہے ہیں خواتین و حضرات کہ جرم فرزد کرتے ہوئے ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے جی ایسے لیکن پھر جو اس کی سزا ہے وہ صرف آپ نہیں بھگتتے سال ہر سال بلکہ بسا اوقات تو زندگی کے آخری سانس تک آپ کی فیملیز آپ کے بچے آپ کا خاندان تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ ظاہر ہے بطور انسان بطور افسران جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں قیدیوں کو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے شاندار کچھ اور نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ. لیکن بہرحال جیل ہے اور کوشش کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے دور رکھے لوگوں کو انشاءاللہ. آئیے جی لیں جناب. تو ابھی تو آپ نے دیکھا کہ اندر جو محنت ہو رہی تھی کیا کہنے بھائی واہ 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 واہ. اور یہ ایک تیار شدہ قالین ریسنٹلی جو تیار ہوا ہے سر کیا بات ہے واہ واہ. اور یہ ڈیزائن آپ ہی نے کیا تھا. میں نے بہت ہی جو عالی شان قسم کے گھر ہوتے ہیں ان میں بھی اس طرح کے قالین بہت کم دیکھے ہیں. جی جی بڑی بڑی نفاست سے اور بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے. تو اس کی کیا رفلی کیا قیمت کیا ہوگی بازار کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو؟ یہ 4 لاکھ سے اوپر 4 لاکھ روپے سے اوپر اس کی قیمت ہوگی. جی زندہ باد. یہ ہم نے بالکل ماڈرن کیا ہے اس کو. یہ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت فیم ہے. جی جی بالکل بالکل. اس کے کلر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت ہی وہ جو ہمارے اورینٹل ڈیزائن کے کمپیریٹیولی اس کے کلر بھی جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت اور بڑے خاص ہے اور اس کا ڈیزائن بھی ملٹیپل ہے. کیا کہنے. اور اس کی قیمت کیا ہوگی سر؟ اس کی تقریباً قیمت جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہوگی. اور آپ کو خود اٹ سیلف کیسا لگتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کر کے یا ایسے لوگوں کو مصروف رکھ کے یا ان کو کسی کریٹیوٹی پہ لگا کے کہ جو ظاہر ایک بڑی بری ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو وہ اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اویل کر دیتا ہے. اب یہ آپ کام تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ذریعے خدمت بھی ہو رہی ہے. جی یہ اب آپ سوچ لیں کہ کس طرح آپ دنیا میں جانے کے بعد جنت خریدنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دے رہا ہے. آپ ان کی خدمت کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزا دے جی. Thank you. زندہ